Vijit was always nukkad natak and script writing and all of Did a that. street play. Yeah. हाँ. जैसे एज एन आउटसाइडर हमें लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कितना रोमांटिक, कितना रोजी सा ग्लैमरस जॉब्स और करियर, So this is news to us कि ये glamorous career है. हम लोग कर तो लेंगे, मतलब आ तो जाएंगे, बट व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है थोड़ा अप्रिसिएशन. वो दो लोगों से भी मिल जाए ना तो काफी है. राइट, जो अभी चोट खा के वापस उठ सकते हैं आसानी से, या जो रिस्क ले सकते हैं, आई वुड से गो फॉर इट. ओके. ये भी बोल हो गया. Welcome to the next episode of Beyond Real Boundaries, where we unveil the stories behind dream careers. Today's guest is a friend who is from my MBA college, where we try to figure out balance sheets, brand strategies, and life as a whole. Please welcome Vijit. Hi, Vijit. Thank you for having me on Beyond Real Boundaries with Supriti. Welcome to the podcast. Vijit, you started off as your education as a civil engineer, Yeah. and then you did your MBA in marketing and finance. Mhm. Then you worked with a company in finance Huh. for a while. Then you moved on to advertising, and then now script writing. So I've really been fascinated by your entire journey, and I'm sure my audience is too. So we would love to know, what were your thoughts when along the way? Like, मतलब how सोच did रहे होंगे कि पागल है आदमी. थॉट्स नहीं थे, मतलब इट वाज मोस्टली एन इमोशनल ड्रिवन जर्नी. मतलब कैलकुलेटेड जर्नी में इतने क्रेजी रिस्क यूजुअली लोग नहीं लेते हैं. एंड इट केप्ट ऑन ग्रोइंग व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू एवरी स्टेज. कि आईआईटी वाले टाइम पे ये सब नहीं था. उस टाइम था कि भाई इंजीनियरिंग करनी होती है, कर ली. बट ड्यूरिंग दैट आई फाउंड कि हाँ ओके देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम गुड एट, राइट, और आई वुड वांट टू डू. गुड एट तो अभी भी नहीं है, बट आई वुड वांट टू डू. देयर इज सम नीश ऑडियंस जिन्होंने अप्रिशिएट किया उस टाइम पे द काइंड ऑफ थिंग्स आई वाज राइटिंग एंड द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. या So I thought कि okay, might as well try this. Let's see. अब वहाँ से जो डायरेक्ट कनेक्शन बैठा था वो आया था. The only company that was even close to that industry was a digital marketing firm. ओके. So I applied for that, got selected, tried out my hands on digital marketing, writing content, After your IIT. creatives. After IIT, Okay. just digital हाँ. marketing का job किया. हम्म. Copy लिखना, different hooks, creatives. अच्छा. बट उसमें फिर समझ में आया कि my knowledge was lacking. ओके. कि सिर्फ क्रिएटिव से काम नहीं चलेगा ना. कस्टमर्स लाने हैं तो ऑडियंस हाँ. का अंडरस्टैंडिंग, मार्केट सेगमेंट का अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, वो सब चाहिए. राइट. आई थॉट कि माइट एज वेल डू एमबीए. लॉजिक सोच वो कुछ नहीं थी. मैंने अच्छा. अक्टूबर में डिसाइड किया कि एमबीए करना है. जनवरी में जैक दे दिया अच्छा. एंड देन एक्सएमबी. एक्सएमबी में द पर्पस वाज क्लियर कि आई नीड टू लर्न. या ये भी बोल हो गया. पर्पस वाज क्लियर कि आई नीड टू लर्न मार्केटिंग, थोड़ा बहुत समझना है जो भी है, तो वो राइट. उस पे फोकस किया. एंड कोइंसिडेंटली आफ्टर दैट गॉट प्लेस्ड इन अ फाइनेंस कंपनी, या corporate finance, B2B lending, all of those things. या वहाँ पे for the first time I felt like a fish out of water कि यार this is not where I belong. या अभी तक तो क्या कभी practical experience था नहीं उसका, तो you never know. But वहाँ पे समझ में आया कि okay, this I don't imagine myself being here for the next 5 years. राइट. तो took a very big risk. एक reputed बड़ी कंपनी में stable role Yeah. छोड़ के Yeah. jump to a startup which was just starting its advertising division. वहाँ पे भी तो बहुत ज्यादा established नहीं था, but took that risk कि यार यहाँ तो नहीं रह सकते, तो might as well do that again. Yeah. So ये वो वाले decisions रहे हैं, never calculated. Thankfully वो decision अच्छा रहा. Spent about 5 years doing various kinds of ads, सबसे छोटे से level से लेकर celebrity ads तक, various campaigns. On the way got appreciation for almost everything that we did. कि clients भी वापस आ रहे हैं because it's working for them functionally as well. Right. Audience वापस आ रही है. We are getting recommended to different people कि okay, I like what these guys have done, why don't you work with them. Somewhere around the other award का recognition भी मिल रहा था, तो वो अच्छा लगा कि okay. During that I learned a lot Okay. कि from idea to screen क्या process है. One line or paper, how does that translate on the screen, how does a producer read it, how does a director read it, what does it impact the actor कि आप कैसे लिख रहे हो. Budgets का handling. Towards the end of that, फिर वो जब एक आ गया था कि okay, now I have learned quite a bit. There's still more to learn, but Yeah.
now I want to shift my focus on honing my writing का skill back again, जो बहुत साल पहले शुरू किया था. Then फिर वो मैंने completely वो वाला रोल छोड़ा. बहुत साल And पहले शुरू किया था मतलब कब? writing तो वैसे तो स्कूल में started, but proper I started around 2010. ओके जब In पहली बार B.Tech. बीटेक में, हाँ, पहली बार जब पोएम्स लिखना शुरू किया था, हम्म प्लेज लिखना शुरू किया था, स्ट्रीट प्लेज लिखे थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ टेस्ट फॉर ऑडियंस अपलॉज एंड अप्रिसिएशन कि अच्छा चलो किसी को पसंद आ रहा है हाँ व्हाट वी आर डूइंग. राइट तो वो अच्छा था. देन नाउ अराउंड 2002 I shifted my focus completely back to script writing. ओके तो लर्निंग, डूइंग कोर्सेज, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उसमें, अच्छा है ना. बट आई ट्राई टू फिल दैट void with other things, ओके practical experience, talking to people, learning from them. So जिससे भी मिल रहा हूँ set पे during a project, everyone has something to teach me. तो Yeah. मैं अपने selfish reasons के लिए वहाँ जा रहा हूँ कि I'm talking to everyone and learning as much as I can. हाँ And वो करके फिर अभी meanwhile now things have started rolling. ओके कि I'm working, I've already done a few feature film and web series projects that are now in their market. उनका अपना life cycle है कि pitching होगी, somebody will buy it, somebody will make it. हाँ. वो सारी चीजें is not up to me. Currently working on a feature film and a web series at the same time. Hopefully इसका जल्दी हो जाएगा. वंडरफुल But this is fun. अभी मजा आ रहा है इस चीज में. या तो वही तुम्हारा जब प्लेसमेंट हुआ इन अ फाइनेंस कंपनी वी वर ऑल शॉक्ड कि विजित एंड दो विजित कैन डू फाइनेंस बट स्टिल विजित इन फाइनेंस इज हाँ. समथिंग वी डिड नॉट इमेजिन विजित वाज ऑलवेज नुक्कड़ नाटक एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल ऑफ We did a street play. या I think वो street play में out of about 12 people, 11 first time actors थे. या या And even the play that we did in college, उसमें apart from I think Amresh, या everyone else was a first time actor. राइट राइट But वो अच्छा था, वो that was very बहुत interesting. अच्छा था एंड Hmm. when did you realize that you have a knack for storytelling? Was it an inborn talent? Hmm. Yeah. Did you acquire it on the go? And then you at one point of time तुम्हें realize हुआ कि अरे मैं तो ये अच्छा कर रहा हूँ. वो तो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. अभी मैं अक्वायर कर ही रहा हूँ. बट आई वुड लाइक टू थिंक ये शुरू से था. Okay. मतलब राइट फ्रॉम कि माय सिस्टर स्टिल टेल्स मी स्टोरीज की मैं रात में बस ऐसे कहानी सुनाना शुरू हो जाता था कि अरे तुझे पता है आज ऐसा हुआ. एंड आई वुड मेक अप सम रैंडम थिंग अच्छा. continuously. I would continue that story for 1 hour, 1.5 hour. वो हाँ हाँ करती हुई सो जाती थी. एंड आई वुड कंटिन्यू. मेरे को पता ही नहीं है कि वो सुन नहीं रही है. हाँ. एंड ये मैं रेगुलर करता था. अच्छा. कहानियां बनाता ही रहता था. देन आई गॉट अ कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्कूल में टू डू गो ऑन स्टेज, राइट समथिंग न्यू, Okay. एक्सटेम्परी वगैरह और वो सब. तो वहां पे लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लगता है. नॉट स्टिल वेरी ऐसा कि यार ये करियर बनेगा Hmm. या करना ही है इसमें. Right. बीटेक में थोड़ा सा उस पर कॉन्फिडेंस आया Okay. कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, Hmm. है ना. और उसके भी देन मल्टीपल रूट्स थे दैट विल डिस्कस लेटर एनीवेज. Yeah. कि अब सोचा है इसके बारे में, तो फिर वो भी देखा कि भाई लोग कैसे करते हैं. Hmm. Okay. देन टुक अप वन ऑफ द मोस्ट मेनी अवेलेबल पाथ्स एंड देन उसमें अपना एक वर्जन बनाया है. Right. तो वो था कि दैट कॉन्फिडेंस तो अभी तक नहीं है. एंड अच्छा. आई डोंट थिंक वो आना भी चाहिए. मतलब एक वो जो पॉइंट आ जाता है ना कि यार मेरे हाँ. को आता है. Then learning stop हो जाता है वहाँ पे. हाँ. You're too confident कि अब तो मुझे आता है. यू मैं कांट कर लूंगा. मतलब यू कांट से कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया सीख है, लिया. जितनी भी बुक्स हैं Yeah. सारी पढ़ ली है, Hmm. जितने भी तरह के जॉनर्स होते हैं मैंने सारे सीख लिए हैं. दैट True. दैट कांट हैपन. Right. तो वो कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है. एवरी न्यू प्रोजेक्ट दैट कम्स, एक सेकंड का सेल्फ डाउट आता है. Hmm. एम आई द बेस्ट वन फॉर दिस स्टोरी, विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट. Hmm. देन वंस यू पुट इन दैट एफर्ट वो बन जाता है somehow. Yeah. It won't be the best version of whatever is possible because literature में there is no best version. Yeah. It's your most honest version of whatever is there, Yeah. which will be to the likeness of your audience. Yeah. आपकी जो भी एक niche audience बनेगी, कोई और बनाएगा उसको अपने तरीके से बनाएगा. Hmm. So हम सब जितने भी कर रहे हैं ना ये, हम सब मन में एक ऐसा डाउट लेके बैठे हैं कि यार अगला वाला चलेगा कि नहीं चलेगा. Right. Right. There's no guarantee. हाँ. Yeah, true. What was your first memory of going out और लोगों को story बोलना and people appreciating कि अरे वाह क्या है ये? मेरे साथ coincidences हैं मतलब mostly. It's never come to me as an opportunity. Okay. है ना. और स्कूल में, हमारे स्कूल में होता भी था कि जैसे हमारे जैसे दिखने वाले जिनको इंग्लिश में एक्सेंट नहीं है, उनको चांसेस नहीं मिलते थे. हाँ.
बिकॉज टीचर विल सिलेक्ट सम पीपल हाँ हु हाँ तो हमको नहीं मिलता था चांस बिकॉज हमारे स्कोर्स भी अच्छे नहीं थे अच्छा एंड देयर जस्टिफिकेशन वाज कि यार एनीवेज यू आर स्ट्रगलिंग विद स्टडीज वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट you हम्म for 2 whole hours in a हाँ day हाँ to send you to some competition so you study पहले पहले हाँ पढ़ाई देख ये लो तो कर फिर लो एक्स्ट्रा फालतू बातें बाद में करना सो वो कभी मौका नहीं मिला था हाँ फिफ्थ स्टैंडर्ड में आई थिंक कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि दिस बहुत स्मॉल था तब तक मैंने कभी स्टेज और ऐसा स्पीकिंग कुछ नहीं किया था हम्म असेंबली में सम सुबह सुबह कोई बच्चा स्पीच देता है दैट हाँ गाय वाज एब्सेंट अच्छा टीचर के पास लिखा हुआ मटेरियल था तो शी केम टू मी कि अरे यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट अग्रवाल विजित ए सबसे आगे खड़ा रहता था हाँ लाइन में हाँ अरे तुम सामने खड़े हो टेक दिस गो एंड रीड है ना सो आई जस्ट हाँ कर हम्म लेंगे ओनली थिंग दैट वर्क फॉर मी वाज कि हाँ कर लेंगे हाँ वेंट ऑन that स्टेज still रेड इट works for you right अभी I वही know चलता है वेंट ऑन स्टेज रेड इट एंड आई डोंट नो ऑडियंस को क्या लगा था उनको तो हाँ हंसना बोलना सब मना था हम्म बट मुझे अच्छा लगा हाँ कि दैट एड्रेनलिन रश जो आता है ना हाँ ऑन गोइंग ऑन स्टेज इट्स अ डिफरेंट फील राइट देन आई स्टार्टेड क्रेविंग फॉर इट कि जितने भी मौके लगते थे हम्म ऑडिशंस हो रहे हैं आई एम गोइंग देयर रिजेक्ट होता जा रहा हूँ कुछ नहीं है वो सब होता जा रहा हाँ है बीटेक में जब गया बीएचयू में देयर डिफरेंट क्लब्स ट्राई आउट अच्छा आई वाज लाइक करूंगा कुछ तो करूंगा वेंट टू ऑल ऑफ द ऑडिशंस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ देम अच्छा मतलब लिट क्लब ने तो बहुत बुरी तरह भगा दिया था अच्छा है ना हाँ अगेन इंग्लिश नहीं आती थी म्यूजिक भी नहीं आता था बिकॉज ऑनेस्टली नहीं आता था दे वर राइट टू सेंड मी अवे एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया था वहां भी दे वर लाइक नहीं तुमको नहीं आता अच्छा चलो कोई बात वन रैंडम डे आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम क्लास आई सॉ हमारे यहाँ एक एनसीसी ग्राउंड होता है एन ओके ओपन ग्राउंड वहां पे देयर वर 7-8 पीपल स्टैंडिंग एंड शाउटिंग हम्म मतलब ये क्या है ये देखता हूँ कुछ तो हो रहा है हम्म मैंने इंस्टीट्यूट देयर लाइक ऑडिशंस हो रहे हैं सम कॉलेज फेस्ट के हम्म मैं भी करूंगा नोबडी इनवाइटेड मी नोबडी नोज हु आई एम मैं भी करूंगा खड़ा हो गया वहां लाइन में हाँ उन्होंने सबको चिल्लाने के लिए बोला मेरी बारी है मैंने चिल्लाया अच्छा लगा सिलेक्टेड मी नाइस उसके बाद तक मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज का सिलेक्शन है मतलब चिल्लाना है ना मैं करूंगा या सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रो इनटू दैट एंड वो अच्छा लगने लगा ये वाले थे लिटिल लिटिल मोमेंट्स दे एडेड अप टू द पॉइंट कि मैंने डिड माय फर्स्ट नुक्कड़ नाटक जो खुद से लिखा और डायरेक्ट किया था वो फर्स्ट आया इन दैट कॉम्पिटिशन Okay. एंड आई सॉ दैट ऑडियंस वाज चीयरिंग फॉर इट तो लगा कि चलो ठीक है कुछ तो आई फाउंड माय नीश में भी राइट है या ना and that's all you need मतलब even when you want to let's say you're doing a digital business या you want to create an online revenue या all you need is about 1,000 hardcore fans या ट्रू apna niche in the entire wide world या is all you need या and it will यस be able to sustain you that's it या ऑफ कोर्स कम से कम तुम अपना you'll do what you're passionate about तुम्हारी एंटायर स्टोरी में मैंने वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड इन यू एंड आई एम नोटिसिंग इन द स्टोरीज इज रेजिलियंस और बिकॉज इफ यू वेर नॉट रेजिलियंट जितने भी रिजेक्शंस हुए हैं यू वुड नॉट हैव बाउंस्ड बैक my life has been a series of experiments it's an ongoing series of experiments abhi bhi या you never know ये कहाँ जाएगा बट आई थिंक पीपल हु एक्सपेरिमेंट हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं ये अटेम्प्ट करूंगा एंड मुझे लगता है कि मैं करूंगा एंड आई माइट डू जस्टिस टू इट होगा या नहीं might हाँ दैट्स अ as डिफरेंट long as you're willing to take that fall या I think वो चल जाता है या वो यस इम्पोर्टेंट है कि आर यू विलिंग टू मेक दैट मिस्टेक और नॉट आर यू रेडी टू टेक या दैट रिस्क और मेरे दिमाग से मतलब आई डोंट थिंक वो रेजिलियंस है आई जस्ट हैव नॉट गिवन माई सेल्फ एनी अदर ऑप्शन मतलब आई गेट टू अ प्लेस जहाँ पे यही पॉसिबल है अब है ना अब वो इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है आई डोंट नो वो एक पॉइंट आ गया था जब आई हैड टू लीव दैट कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज या पॉसिबल ही नहीं था तो आई जस्ट ड्राइव माई सेल्फ इनटू अ कॉर्नर कि अब तो यही करना है हाँ राइट मतलब अब यहाँ से कहाँ जाओगे उठोगे ही ना हाँ रॉक बॉटम के बाद कहाँ जाओगे ट्रू सो वो कोइंसिडेंटली होता जा रहा है एंड एज लॉन्ग एज आई थिंक ये भी मेरे को फायदा है कि आई लाइक दिस कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो 4 अच्छी लाइन लिख के एक फील गुड आ जाता है कि यार चलो आज का हो गया हाँ सेटिस्फैक्शन आता है इट मे और मे नॉट जनरेट रेवेन्यू वो वाली चीज है ना कि दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर राइट जो कि अपन करेंगे एनीवेज हाँ बट इट मे और मे नॉट जनरेट रेवेन्यू बट इट इज जनरेटिंग गुड वाइब्स एंड गुड फीलिंग्स फॉर मी मेंटल सेटिस्फैक्शन फॉर मी या तो वो इम्पोर्टेंट है आई थिंक मैं कल ही आई वाज रीडिंग टू एन इंटरव्यू विद वन ऑफ द सीनियर गाइज ही वाज सेइंग कि writing gives you inner prosperity
Wow. Then he gives that disclaimer कि outer मिलेगी नहीं मिलेगी guarantee नहीं है. Right. There are lots of good writers who are not commercial writers, who are not selling it. Yeah, yeah. लिखते हैं अपना रख लेते हैं. When you go to open mics, a lot of them come, they share their stories with you, Yeah, and they're amazing writers. yeah. But just ये है कि not everyone wants to turn it into a profession. True. वो है. So Yeah. this is the experiment I'm doing right now. नहीं होगा तो फिर कुछ नया ढूंढेंगे. सही है. So this brings us to the second segment where we understand script writing. जैसे as an outsider हमें लगता है कि script writing कितना romantic, कितना रोजी सा करियर है, बस बैठ के आराम से लिखते रहो, स्टोरी बनाते रहो. So we glamorize this is one of those glamorous jobs or career. Uh, but as a storyteller, as a script writer, what would you say is not so glamorous about this? So this is news to us कि ये glamorous career है because News to us as in the script writing community. हाँ, because Yeah. हम लोग को यूजुअली प्रोजेक्ट्स में से बहुत ज्यादा रेपुटेशन नहीं मिलती. अच्छा. अभी वो मूवी आई है ना सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसमें वो एक डायलॉग है कि राइटर बाप होता है. हाँ. उससे कोई राइटर रिलेट नहीं किया है. Really? बिकॉज ऑल्दो वी नो कि दैट द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अस, Yeah. it's mostly the actor who gets, who's The on who's accolades. the face of the entire Yeah. thing. Yeah. Mostly things are determined by numbers. Yeah. आप कितना रेवेन्यू लेके आ रहे हो, what is the pull that you have for seats and Yeah. tickets and OTTs. तो वो हायरार्की में ज्यादा हो जाता है. अच्छा. And celebrity directors, so it's a hierarchy model. Okay, fine, that works. We are trying to make our own place for it. Even the Screenwriters Association is continuously fighting for proper rights, proper payments और वो सब. Right. तो हाँ, it's glamorous. I don't know, maybe लगता होगा because it's connected to, let's say, the हाँ, the filmmaking industry filmmaking. and Yeah. the entire thing. But हाँ, one thing that is sort of confused about it, it's not a sprint. है ना, Okay. it's a marathon. It starts with a story, concept stage कि okay, this is a premise, one liner. So somebody gives you a premise or like मतलब तुम बैठ के कैसे सोचते हो कि this is the premise I want to write on और ये हो जाता है, मतलब जैसे इसमें मेरा थोड़ा सा मार्केटिंग वाला नॉलेज भी काम आता है. Okay. कि ideal way is that you come up with various concepts. You select one of them कि this is good enough, उसके criteria हैं that we'll discuss, and then you build on it. आपने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, उसको स्पेक बोलते हैं. Okay. कि आपने पूरा एक स्टोरी बनाया उसके ऊपर, लेट्स से फीचर फिल्म, पूरी स्टोरी बनाई, कैरेक्टर्स, वर्ल्ड, यू डू द एंटायर थिंग, देन यू, सो क्या स्टोरी, कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी. द नेक्स्ट स्टेज आया स्क्रीन प्ले, वेर आप पूरा प्रॉपर उसमें 90 पेजेस 100 पेजेस का स्क्रीन प्ले लोगों के पेज, मिनट बाय मिनट की क्या हो रहा है एवरी सीन में. Okay. कौन दो लोग हैं स्क्रीन पे, किसने बोला, तीसरा कौन आया, कुछ टूटा, क्या रखा हुआ है, बैकग्राउंड में क्या है, हाउ आर यू सेटिंग द मूड, आर देयर एनी क्यूज फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि इसका मेंटल स्टेट क्या है कैरेक्टर का. Okay. ठीक है. आर इज देयर अ कैमरा एंगल दैट यू आर यूजिंग जिससे उनकी हायरार्की समझ में आएगी ना, कि सरकार में वो अमिताभ बच्चन का नीचे से यू शॉट आ रहा है बिकॉज ही इज लार्जर देन लाइफ. मिर्जापुर में जब वो पंकज त्रिपाठी का एक शॉट आता है, नीचे से आता है, पीछे से वो सीन निकले हुए हैं बिकॉज ही इज लार्जर देन लाइफ. ये सब स्क्रीन में आप लिखोगे. फिर एक और पार्ट आता है उसमें विच इज द डायलॉग पार्ट ऑफ इट, कि आपने स्क्रीन प्ले में, मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया. आई हैव एट मैच लेट्स से 3-4 4.5 लैंग्वेजेस का नॉलेज, दैट्स इट. Okay. But I have characters from various backgrounds in the script. Right. So now I need a team to write those dialogues जो उसको justice कर सके. So the third stage is dialogue writing. Okay. This entire thing may take anywhere from, let's say, अगर 2-3-4 महीने में भी हो जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं. Okay. मेरे एक टीचर है सत्यांशु सर, आई थिंक उन्होंने बताया था उनकी जो फर्स्ट वाली फिल्म थी चिंटू का बर्थडे, अच्छा. उसके उन्होंने राइटिंग एंड रीराइटिंग इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 7 years. So while also doing other things, Okay. but उस script itself, that process lasted for 7 years before finally he made it. Wow. हाँ. तो उसका कोई लिमिट नहीं है. ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती है. मतलब for most of the new people that I've met, Yeah. who just coming in, just passed out for film school, Yeah. you can't marry a concept कि ये अच्छा है, ये मुझे पता है. A concept being good has nothing to do with it being made. There's a lot of luck, there's a lot of timing, also contacts if possible. Okay. बहुत सारे वेरिएबल्स हैं.
ठीक है कि राइट नाउ इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट विच यू फील बहुत अच्छा है बट द टाइमिंग इज नॉट राइट फॉर इट, Yeah. द बायर्स आर नॉट रेडी फॉर सच अ कॉन्सेप्ट, वो भी एक तरीका हो सकता है, या ये पहले हो चुका है, पीपल डोंट वांट टू सी इट एनीमोर, Okay. तो भी हो सकता है कि आपने हो सकता है उसी सेम सेटिंग में जो मिर्जापुर टाइप की सेटिंग है, उस सेटिंग में कुछ नया कहानी लिख दिया, Okay. बट द बायर्स आर नॉट रेडी फॉर इट, मे बी क्या सैचुरेशन आ गया. सो अ गुड स्टोरी डज नॉट मीन सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट. Right. ठीक है, Okay. तो वो एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग पॉइंट हो जाता है कि यार इट डज नॉट डिपेंड ऑन मी, इट्स अ टीम एफर्ट. Yeah. तो वो होती है ऐसे, देयर आर लॉट्स ऑफ माइनर थिंग्स. एज अ राइटर व्हेन यू स्टार्ट एंड डू द एंटायर थिंग, you have a vision for that entire project. Okay. Yeah. May or may not match with the studio's vision of it. Acha. Then again, it may or may not match with the director's vision of it. And then again, it may not match with the actor's vision of it. Is it not कि जो स्क्रिप्ट राइटर है people align with the script, या ऐसे होता है कि स्क्रिप्ट राइटर has to align with the people? इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है. अच्छा. Depends how much say you have in a project. Okay. Okay. मतलब there are a couple of projects जो मैं अपनी ही टीम के साथ अभी कर रहा हूँ. Okay. उसमें there's a lot of creative satisfaction in that as well, more creative control, because me and the director are on the same page. Okay. We have set chemistry. We've been doing ads for almost 7 years now together. Okay. And it has worked for both of us. So वो process we are now applying to feature films. अच्छा. Okay. So it works for us. But it may not work when, let's say, in a studio system, जहाँ पे आपने एक स्टोरी लिखी है, somebody has purchased it, maybe they want to make it. Right. You might be out of the project right now. Yeah. Like, take Yeah. your money, go. That's fine. अच्छा. They may or may not want you involved in the project. Okay. So ये आपके कंट्रोल में नहीं है. That's not something that even I should think about right now. I should think about making the best version of the story according to me at this moment. फिर वो वहां से कहाँ जाती है, no idea. Right. So वो that it's not glamorous. Yeah. अंदर की तरफ आके, because like any other profession, there are challenges. There is a process to learn things. The art or the professional side of it, and the logistic side of it as well, the practical ones, Right. the people side of it also. किसी भी प्रोफेशन में आपको सक्सीड करना है, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दोस पार्ट्स. Yeah. और यहाँ पे भी सेम है. Right. इट्स नॉट वो वाला कि यार ये तो बैठ के लिख लेते हैं, है ना. There are lots of things. You have to package yourself as well. If a studio is putting money on you, you need to be reliable enough. You maybe have a track record. You have references of delivering on time every time, of not taking feedback personally, Right. of fitting within the budgets. कि नहीं मैं तो हेलीकॉप्टर ही लाऊंगा, वो नहीं ना. हाँ. So you need to have a track record for doing all of that consistently for a studio to finally come and say कि okay, I trust you enough to give you my project. Okay. क्या कभी ऐसे हुआ है that you would sit and question कि नहीं यार गलत डिसीजन हो गया, इसमें नहीं आना चाहिए? होता रहता है. But नहीं, सारे प्रोफेशन में कभी ना हाँ, कभी तो ups and downs तो आते ही हैं. But I think ये कब आजकल, I think of late ये नहीं हुआ है कि नहीं आना चाहिए था, because I have driven myself in a corner Right. कि अब करना तो यही है. हाँ. I have to make it work. Yeah. है ना, बाय हुक और बाय क्रूक अब करना तो यही है. तो अब वो वाला क्वेश्चन हट गया है, थैंकफुली. अप अंटिल 2002 वो था डाउट, व्हेन आई टुक दैट करियर का जंप. आई थिंक वो डाउट था कि यार ये नहीं करना, गलत ले लिया गया रास्ता. Right. बट नाउ आई हैव नॉट गिवन माय सेल्फ एनी अदर ऑप्शन कि अब तो यही करना है. आर्या पार वो वाली चीज है अब, है ना. बट मोमेंट्स आते हैं. अभी रिसेंटली एक मोमेंट आया था where I had spent almost 4 months on a very fresh concept. मेरे लिए फ्रेश था वो, Okay. है ना. आई वाज वेरी होपफुल कि अच्छा होगा ये, दिस केम आउट गुड, फीडबैक भी अच्छा आ रहा था. देन सडनली किसी ऑलरेडी एक बड़े स्टूडियो का अपकमिंग शो का ट्रेलर आया, अच्छा. which is based on exactly the same concept. अरे. And that's just bad And you timing had for already me. spent 4 months working on I it. have given my 4 months. मेरा तो गया ना वो. Yeah. Because अब ये है कि इसमें किसी की गलती भी नहीं है. They are doing their own independent thing. मैं अपना अकेला बैठ के कुछ लिख रहा हूँ. Right. Coincidentally, that came out to be exactly the same topic. ठीक है. It's sort of उसके भी अब pros and cons हैं. On one side, it may cut off some of my avenues. कि यार okay, I've already seen this. ये compare होगा. Right. दूसरी तरफ, if that thing succeeds, it will create demand for more stories in that genre. Right. So it might help me sell it to someone else. Yeah. है ना, who like कि अच्छा उनके पास भी मुझे भी चाहिए. So again, एक सेकंड के लिए वो लगा मुझे कि यार
इट वाज ऑल वेस्ट। हाँ, बट नहीं हुआ, बिकॉज वेस्ट भी नहीं था। वाइल राइटिंग दैट आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। अब मेरे को उस प्रोफेशन के बारे में पता है, उस वर्ल्ड के बारे में और नॉलेज है। आई माइट राइट, यूज इट समवेयर एल्स। द कैरेक्टर्स आर लाइव पीपल इन माय ब्रेन। हो सकता है मैं वो कैरेक्टर कहीं और यूज कर लूं। राइट, सो फिर वो कुछ टाइम लगा टू कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं, वेस्ट नहीं था। इट्स जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग की, यार जिम में जाके 2 रेप्स एक्स्ट्रा कर लिए थे, हाँ, जो मैं नहीं करता हूँ, बट लोग तो समझ सकते हैं हाँ, कि इट वाज बॉडी बिल्डिंग, या थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली, वेस्ट नहीं हुआ, कब कहीं और काम आ जाएगा। राइट। तो खुद को थोड़ी सी सांत्वना दी जाती है ये बोल के। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट्स Good. इट। Again, I think that's again resilience. But ऑप्शन नहीं है। तो तुमने जब ये करियर चेंज किया फ्रॉम हम्म, एडवर्टाइजिंग टू स्क्रिप्ट राइटिंग, हाँ। बहुत लोग इंक्लूडिंग मी वुड थिंक कि स्क्रिप्ट राइटिंग अगेन बिलोंग्स टू अ ग्लैमरस फील्ड, राइट? तो यहाँ पे कनेक्शंस होना जरूरी है टू गेट वर्क। हाँ, सो डिड यू हैव कनेक्शंस व्हेन यू केम इनटू दिस, या हाउ, कैसे, हाउ डिड यू थ्राइव, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू नो कि मुझे ये कनेक्शंस बिल्ड करना है, ये करने से ग्रो होऊंगा मैं, ऐसे करने से प्रोजेक्ट्स मिलेगा? सो हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग दैट? ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट माय फोर्टे। कनेक्शंस, कनेक्शंस, ओके, नेटवर्किंग जो बोला जाता है, हाँ, टॉकिंग टू पीपल, दैट्स नॉट माय फोर्टे। आई एम मोर ऑफ अ अकेले बैठ के सोचने वाला आदमी। या, ठीक है, बट अगेन जो मैंने बोला ना कि व्हाई आई थिंक आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, समहाउ आई फील लाइक दैट, बिकॉज मैं इतने सालों से ऐड करा। हम्म, एवरीवन हु आई मेट, यू कैन सी कि ये लोग इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हु हैज स्टक फॉर सो लॉन्ग, जो भी 7 साल पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है, वी बिकम गुड फ्रेंड्स। बट तुम्हें वो लोग मिले कैसे? वो लीप ऑफ फेथ रहा है। प्रोजेक्ट आया, वी आर फाइंडिंग अ प्रोडक्शन हाउस टू डू समथिंग, कभी गूगल पे सर्च कर लिया, कभी किसी को काम करते हुए देखा था, हम्म, और फिर उन्होंने किसके साथ काम किया था, सॉ एन एड जो अच्छा लगा, उसका प्रोडक्शन हाउस ढूंढा, उन लोगों से बात करी, अच्छा, एंड तो फर्स्ट वन वाज अ लीप ऑफ फेथ। हम्म, फिर जिनके साथ अच्छा लगा उनके साथ बार बार करते रहे, ओके, अपने आप वो केमिस्ट्री बन गई। हम्म, एंड देन व्हेन आई फाइनली लेफ्ट एंड started doing all of this, so they became the first people I called ओके, कि बॉस आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, तुमको काम हो तो प्लीज। बता दो, हाँ, एंड थैंकफुली मतलब वो एक साथ में काम करके ऐसी बन गई थी रेपो की, हम्म, दे वर आल्सो वेरी विलिंग टू वेलकम मी कि अच्छा ठीक है, लेट मी रिकमेंड। आज भी आता है कि कभी उन लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट मिलती है फॉर अ राइटर, अच्छा, दे सेंड इट टू मी हम्म, कि मे बी यू चेक इट आउट। या, तो वो चीज़ अच्छी है कि एक ग्रुप बन जाता है काम हम्म, करते-करते। मे बी अगर मैं इंटेंशनली करता तो इट वुड हैव बीन बिगर, हम्म, हो या, सकता है, और फास्टर होती मेरी ग्रोथ, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी। हम्म, तो माय ग्रोथ हैज़ बीन मोस्टली, द नेटवर्क वाला ग्रोथ हैज़ बीन मोस्टली ऑर्गेनिक। हम्म, प्रोजेक्ट किया साथ में, दे सी दैट आई एम आल्सो ऑनेस्टली वर्किंग ऑन इट, आई सी दैट दे आर आल्सो ऑनेस्टली वर्किंग ऑन इट, या, एंड वो समहाउ लाइकिंग बन जाती है कि ठीक है, हम्म, दिस इज़ अ गुड पर्सन टू वर्क विद। राइट। सो द रीजन मैंने ये पूछा इज बिकॉज बिफोर डूइंग दिस एपिसोड वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, हुँ, बिकॉज हमारा ऑडियंस आर पीपल हु वांट, who are aspiring storytellers, who are हाँ। aspiring script writers, तो उन्हें हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कर तो लेंगे, मतलब आ तो जाएंगे, बट व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? लाइक मैं डिसाइड किया कि चलो कल से आई हैव डिसाइडेड आई विल बी अ स्क्रिप्ट राइटर। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई हैव टू टेक टू हाँ, मेक श्योर दैट आई गेट माय फर्स्ट वर्क? ओह! ये तो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, तो इसका थोड़ा-सा मतलब इट माइट टेक सम टाइम टू ओके, एक्सप्लेन कि देयर इज़ नो वन रूट फॉर दिस। ओके, मैंने बीटेक में, व्हेन आई सेड ना अर्लियर कि जब मैंने डिसाइड किया था, हम्म, तो आई एनालाइज़ कि कितने डिफरेंट रूट्स हैं। ओके, कोइंसिडेंटली वरुण रोवर सर इज़ वन ऑफ आवर कॉलेज सीनियर्स, हम्म, 10 साल पहले थे वो, बट वहाँ पे हम्म, ही विजिटेड कॉलेज अराउंड अच्छा, दैट टाइम, 2013 के अराउंड। ओके, तो हमने उनके लिए एक नुक्कड़ प्रेज़ेंट किया, ओके, मतलब 16 पीपल परफॉर्मिंग फुल एनर्जी के साथ फॉर वन गाय, बिकॉज़ हम में था वो पैशन सब में। हाँ, हाँ, देन वी सैट विद हिम फॉर अ व्हाइल, ही गेव अस 15-20 मिनट्स बिफोर ही हैड टू गो। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली, बिकॉज़ ऑल ऑफ अस लाइक कि भई हमको भी करना है। आपने किया, हम भी वही करेंगे। राइट, या, तो थोड़े से क्रेज़ी तो थे सब। बट ही टोल्ड वन थिंग कि यार वो अगर 9 साल चटाई पे सोने के लिए तैयार नहीं हो ना, हम्म, छप जाती है वो चटाई का जो पैटर्न होता है ना हाँ, क्रिस-क्रस, हाँ, बैक पे छप जाता है गर्मी में। अगर या, उसके लिए रेडी नहीं हो, तो ऐसा आँखें बंद करके आने का नहीं। है ना? एंड देन ही गिव गुड टिप्स कि अच्छा रीड मोर,
100 किताबें पढ़ो तब तो समझ में आएगा कि नया क्या है, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। बट वो एक वार्निंग काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आई थिंक 16 में से 15 गिव अप एट दैट पॉइंट। राइट। बट देन आई डिसाइडेड कि अच्छा हाँ, अब उसमें क्या है, नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स क्या है, ये नहीं तो क्या, है ना? सो यू हैव टू एनालाइज़ योर लेट्स से फाइनेंशियल स्टैंडिंग आल्सो, या हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू आफ्टर कॉलेज, कितना बैकिंग है, प्रिविलेज है आपके पास कि नहीं, बिकॉज़ टू इवन ड्रीम ऑफ समथिंग लाइक दिस इज़ अ प्रिविलेज। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू डोंट हैव द प्रिविलेज टू एक्सप्लोर और टेक रिस्क्स। या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है? मैं वैसे बाय नेचर आई एम नॉट अ वेरी बिग रिस्क टेकर, बट व्हेन इट कम्स टू दिस कंसिस्टेंटली आई हैव डन दैट कि हाँ, कर लेंगे। तो उस टाइम पे आई फाउंड प्रसून जोशी की प्रोफाइल, ओके। मतलब फाउंड क्या, उनको तो फैन थे हम, बट उसके बारे में पढ़ा। ही डिड 10 इयर्स इन ओगिलवियन मेथड कंसिस्टेंटली। आईएमटी गाजियाबाद से थे वो। अच्छा। मतलब फिजिक्स का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आईएमटी गाजियाबाद, देन वेंट टू ओगिलवियन मेथड 10 इयर्स एडवर्टाइजिंग पूरा। अभी तो आई थिंक वो मैकेन इंडिया वर्ल्ड वाइड के हेड हैं। अच्छा, ओके। सो नाउ तो इज, बट वो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, he Yeah. gave 10 years to advertising, साथ-साथ में polishing his writing, उनको भी पैशन था, तो लिरिक्स एंड फिल्म लिखना। Right. देन दैट्स हाउ वी गॉट वो रंग दे बसंती के गाने, तारे ज़मीं पर के गाने, Yeah. भाग मिल्खा भाग, वो सारी चीजें। हाँ। सो ही हैड हिज ओन पाथ, जो मुझे लगा was closer to what I could aspire to achieve, Okay. है ना? नॉट इतना अच्छा बनाना, बट टू वॉक द रोड दैट ही हैज वॉक्ड ऑन, Okay. वो वाली चीज। सो आई स्टार्टेड विद दैट। तो अब क्या होता है कि अवेलेबल ऑप्शंस देखते हो, एक तो होता है कि ठीक है मेरे में है टैलेंट, मैं चला जाऊंगा मुंबई, स्ट्रगल कर लूंगा। दूसरा होता है कि अच्छा ठीक है, कैन आई डू अ पैरेलल करियर, एडवर्टाइजिंग में करके वहां जाना, इज व्हाट आई सॉ। देयर आर अदर पीपल हु डन समथिंग सिमिलर कि अच्छा फिल्म स्कूल चले गए, फिल्म स्कूल में वेरियस कोर्सेज हैं, वहां से आप असिस्टिंग कर लो, असिस्ट करते करते आगे चले जाओ। तब उसमें भी क्या लोग बोलते हैं कि यार टू बिकम अ गुड राइटर और अ डायरेक्टर, आपको एडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। Okay. There's a lot of stories also written on the editing table. Maybe you assist some directors on their projects, Okay. and then वो करते करते अपनी writing skills build करो। There are actors turned writers, वो वाली भी Okay. चीजें होती हैं। There's another route where you go the play वाला thing, NSD, theater, Right. start writing, hone your writing craft, stage presence, and then फिर once you have that qualification, तो एक तो वो नॉर्मल जो एनी प्रोफेशन का होता है, एक तो क्वालिफिकेशन वाला तरीका होता है, Right. एक लाइव एक्सपीरियंस वाला तरीका होता है, एंड एक वो वाला होता है जो मार्केटिंग में भी यूजुअली लोग कितनी बार करते हैं ना, कि क्लाइंट साइड पे है 4-5 साल मार्केटिंग टीम में, एंड देन फिर उसके बाद एजेंसी साइड चले गए Right. कि ये अच्छा लग रहा है, तो वो वाला एक तरीका होता है। तो लाइक एनी अदर प्रोफेशन देयर आर मल्टीपल रूट्स टू फॉलो। Okay. दिस इज द वन आई स्टार्टेड विद, एडवर्टाइजिंग वाली चीज। Okay. फिर वही था, आईटी मीडिया गया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, रियलाइज की एडवर्टाइजिंग के लिए और नॉलेज चाहिए, एमबीए, एंड देन द एंटायर प्रोसेस 6 years in Bangalore doing ads, and फिर then came a point की where I decided कि okay, Okay. अब राइटिंग पे फोकस करते हैं, बिकॉज वो निग्लेक्ट हो रही है हाँ. ना। टू रन अ स्टार्टअप आल्सो इज वेरी डिफिकल्ट, so there was a point where there were 2-3 of us doing the entire, running the entire startup. Right. So take care of HR, accounts, hiring, operations, client servicing, everything that you have to do. Then I took a step back, okay, let me focus on my writing career. That's what I've been doing so far. Okay. And it has been, वही है कि I've never looked back. Right. मेन चीज वो रही है कि you take your call and you own that decision. ठीक है, आप किसी और के कहने पे अगर डिसीजन ले रहे हो, so you'll always maybe find an excuse to blame them for the failure. है ना, at least you won't blame someone else. प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, यार तुमने करा दिया, यार मैं कुछ नहीं कर पाता, है ना। then you won't be solution oriented, you will be problem oriented, कि मम्मी पापा ने बोल दिया देखो मैं तो इतना दुखी हूँ, है ना। But if you've taken your decision, and thankfully my parents were supportive enough to let me take those decisions. I've taken 3-4 major like drastic steps in my life, and they've supported me through it. So वो privilege है जो सबको नहीं मिलता। But हाँ, वो मैंने लिए steps, and now I own it कि ठीक है, good or bad I'll deal with it. Okay. Which is I think important for that mental peace and satisfaction कि आपको डर नहीं लगता, यार लगता है तो you are able to overcome, because you're like okay, I have chosen it, I'll figure it out. This brings us to the third segment. So, हमें हमेशा से पता था that you were a good storyteller.
वो हमने कॉलेज में भी देखा। बट बट तुम्हारा वे ऑफ स्टोरी टेलिंग आई थिंक हैज इवॉल्व्ड ओवर इयर्स। सो सो मुझे उस वक्त भी पसंद था और अभी भी पसंद है। सो दैट वर्क्स फॉर मी। इसीलिए शायद दोस्त है कि दोस्तों को दोस्तों के बारे में सब मिल गई, पसंद है। हाँ। But yeah, on a serious note, तुम्हारा way of writing has evolved. हाँ, So, what has played a part in you honing your skills? Is it people? Is it your? Is it practice or is it your experiences? करेक्ट। Or all three? All three हाँ, of मतलब them. ये काफी ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन हो गया। सो राइटर्स का ये बेसिकली बोला जाता है कि देयर एक्सपीरियंस इज देयर लाइफ एक्सपीरियंस। Okay. ठीक है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, टैरेंटिनो का भी रिसेंटली कोट था कि हिज जॉब इज टू ऑब्जर्व एवरीवन ही इज मीटिंग, द अच्छा. लिटिल इडियोसिंक्रेसीज, लिटिल रिएक्शंस, Hmm. एवरी पर्सन इज स्लाइटली डिफरेंट, Yeah. Yeah. है ना? मैं कभी-कभी भी बाहर निकलता हूँ तो आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग Hmm. वियर्ड कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते हैं लाइफ में बाहर, अच्छा. स्पेशली व्हेन यू एंटर इनटू सिटी लाइक मुंबई। बहुत वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं व्हिच आई थिंक घर पे बैठ के सोचने भी नहीं होता। Yeah. सो द लाइफ एक्सपीरियंस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। थैंकफुली आई हैव हैड अ लाइफ जहाँ पे मैं डिफरेंट सिटीज में रहा हूँ। आई हैव लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल सिटी भोपाल, Yeah. 12 साल ऑल बॉयज स्कूल। अच्छा. हाँ, तो दैट आल्सो गिव मी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। Yeah. ठीक है? Yeah. देन 4 साल बनारस, दैट वाज आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। उसके बाद सम टाइम इन दिल्ली, 2 इयर्स इन भुवनेश्वर, Hmm. about another year in Mumbai, 5-6 years in Bangalore, uh, talking to different kinds of people, about 3 months on the foreign exchange और ये सब करके the life experience, different places that I visited, different kind of people, Yeah. different kind of professions as well. Hmm. Yeah. मतलब मैंने फाइनेंस वाले कॉर्पोरेट सीनियर्स से भी इंटरेक्ट किया है, Hmm. एल्गोरिदम एंड आईटी पीपल से भी इंटरेक्ट किया है, तो वो भी Yeah. एक फर्क पड़ जाता है। राइटर्स, एक्टर्स, सब। तो यू कांट स्टे क्लोज्ड इन योर ओन सर्कल। Yeah. तो दैट वाज वन, दैट इज द बेसिक कि Hmm. इतना तो करना ही है लाइफ एक्सपीरियंस वाली चीज। बट देन द नेक्स्ट थिंग दैट हेल्प मी ग्रो आफ्टर दैट इज रीडिंग अलॉट। Okay. जो आई थिंक वरुण ग्रोवर ने भी स्टार्टिंग में जो चीज बोली थी, Hmm. देयर वाज अनदर सीनियर ऑफ आवर्स, जो इंस्पिरेशन मैंने बहुत लोगों से ली है। देन फिर एक आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मुझे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए था फॉर माय वर्किंग प्रोसेस, कि हर चीज कैन नॉट बी कि आज रात को मन किया तो 2 लाइन लिख ली, Hmm. है ना? Yeah. जो कि मतलब आई स्टिल डू दैट, बट वो प्रोफेशनल फिर आई कांट मेक कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोफेशनल पेइंग क्राफ्ट, Right. बिकॉज़ देन आई एम नॉट रिस्पांसिबल इनफ Hmm. to Hmm. deliver on time. Right. That's where I joined different classes. One of the best one was Satyanshu Singh sir's class, Okay. where उन्होंने भी सिमिलर चीज बोली कि मतलब द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज टू राइट एवरी डे। एंड वो Okay. बहुत सिंपल लगता है बोलने में कि हाँ ठीक है, सही तो बात है ना? बॉडी बिल्डर को आप क्या बोलोगे? बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वर्कआउट एवरी डे, हाँ. डाइट एवरी डे। बट राइटर को आप बोलते हो तो हाँ सही है, कॉमन सेंस है, Hmm. करता कोई नहीं है। हाँ. मुझे ऑलमोस्ट वो क्लास के बाद 1 साल लग गया टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग सम लिटिल थिंग एवरी डे, Okay. जबकि लगता था यार वेरी ऑब्वियस राइट। नहीं होता वो। हाँ. इट टुक अबाउट अ ईयर टू गेट इनटू दैट हैबिट एंड इट पेज ऑफ। तो पहला हुआ लाइफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, Yeah. से यस टू एवरीथिंग, Hmm. है ना? इसलिए मैं आजकल वो आई हैव स्टार्टेड डूइंग ओपन माइक्स एज़ वेल, गोइंग Wonderful. विजिटिंग न्यू, मीटिंग न्यू पीपल, Yeah. तो काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। um, You have written songs too. हाँ, वो दैट वाज अ Yeah. पार्ट ऑफ द लर्निंग थिंग, Yeah. कि वो करते करते आई रियलाइज कि चलो एक बार सॉन्ग्स भी लिखते हैं। अब Yeah. क्या है, नोबडी विल, सॉन्ग लिखना भी इज आल्सो कॉस्टली अफेयर। Hmm. Of course. Yes. कोई रैंडम राइटर पे दे वोंट स्पेंड लाइक 40-50,000 जस्ट टू प्रोड्यूस अ सॉन्ग। Yeah. सिंगर चाहिए, स्टूडियो चाहिए, रिकॉर्डिंग होनी है, कंपोजर है, Yeah. साउंड इंजीनियर्स हैं, ऑल ऑफ दैट। Hmm. देन इवन टू रिलीज दैट इट टेक्स सम मनी। Yeah. तो आई सेड कि अच्छा ठीक है, इफ नोबडी इज टेकिंग अ चांस माइट एज वेल ट्राई आउट समथिंग। जो भी चीजें हैं सिस्टम में से बाहर निकलेंगी। Hmm. Hmm. आई विल गेट टू सी, जो मैंने एड्स में किया था फ्रॉम द आइडिया और द पेपर टू स्क्रीन, वो चीज सॉन्ग्स में भी करके देखूं, Hmm. फ्रॉम द लिरिक्स टू ऑडियो, Yeah. क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है। सो आई थिंक आई रिलीज अबाउट 4 or 5 songs Yeah. in the past 6 months. There are a couple of them जिसकी लोगों को काफी तारीफ लगी, अच्छा लगा। One was about college and friendship because Yeah. वो relatable हो जाता Yeah. है। Yeah. One was about love। Mental health as well. हाँ, वो भी था एक, वो मैंने खुद के लिए लिखा था। अच्छा. वो बहुत जेन्युइन था बिकॉज उसमें एक लाइन है कि
सुबह सुबह फिर अलार्म बजा, सोया ही था और नींद खुल गई, बिकॉज व्हेन यू स्लीपलेस नाइट्स, सोचा है आज एक नया दिन, कोशिश तो की पर चाय ढुल गई, है ना। एंड वो एक जो मोमेंट है फॉर मी ऑन माई रेगुलर लाइफ, वो जिस दिन वो चाय गिर जाती है ना, उस दिन हो जाता है कि आज का दिन बुरा जाएगा। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक आफ्टर दैट। तो जिस वो मेरे अपने लिए लिखा था, तो अभी भी कितनी बार ऐसा होता है, जेन्युइनली चाय ही गिरती है सुबह सुबह जब मैं बना रहा होता हूँ, एंड देन आई प्ले दैट, आई लिसन टू इट, हाँ चलो ठीक है। वो वाला होता है ना, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट जस्ट हेल्प्स टू नो दैट समबडी एल्स इज गोइंग थ्रू इट, इट्स नॉर्मल, happens to other people as well. तो वो लिखा, एंड आई फाउंड आउट कि some people related to it, कि यार ये तो lot सही of है। people, हाँ। lyrics ही वैसे था कि people going through a lot of mental health issues या just mental health stress and all of that, थोड़ा they will स्ट्रेस भी, relate. इट्स बेसिक कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस भी कितनी बार ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है, जो बर्नआउट वाली चीज है। सो आई सॉ दैट सम पीपल वर रिलेटिंग टू इट, तो वो मेरे को सांत्वना मिली कि अच्छा चलो अकेला नहीं हूँ। उसमें एक लाइन वो वाली भी है कि मैं अकेला तो नहीं हूँ यार, है ना, मेरे जैसे होंगे हजार। तो वो एक चीज आई थिंक वो वर्कआउट कर जाती है कोइंसिडेंटली। तो इसलिए वो मैं अपने लिए लिखा वो वाला गाना। वन वाज फॉर कॉलेज फ्रेंड्स, वन वाज फॉर लव, जिसको अभी, सो आइडियली व्हाट दैट गाय इज सेइंग उसमें कि अभी मत आना, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर यू। सो मेरा एक बिलीफ है वो वाला ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर व्हाट यू आर होपिंग फॉर। तो वो वाली चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आई थिंक उसका, देयर वाज अनदर पैराग्राफ जो उस गाने में नहीं फिट हुआ था। इट वाज समथिंग अराउंड कि ना करना मेरी आरज़ू पूरी, कि दुआ में दर्द आना बाकी है, कि अभी मेरी दुआ में दर्द नहीं आया है, कि अभी ना करना मेरी आरज़ू पूरी, कि दुआ में दर्द आना बाकी है, ना मिलना अभी है मंजिल मुझे, कि कदमों का लड़खड़ाना बाकी है। वाह! कि अभी तक मैंने अपना पूरा एफर्ट नहीं डाला है, आई एम नॉट गिवन इट माय ऑल, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू डिजर्व यू, है ना। फिर मंजिल मिलेगी तो उसका फ्लेवर उतना ज्यादा अच्छा आएगा। So recently I've done a short film on that same concept. अच्छा, हाँ, ओके, उसको रिलीज होने में टाइम लगेगा, अभी एडिटिंग चल रही है, बट दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने वो लिखे, सॉन्ग्स लिखे, ओपन माइक पे भी शायरी जो वाली होती है कपलेट्स वाले फॉर्म में, आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। उसके अलावा एड्स अभी भी बीच बीच में करता रहता हूँ, बिकॉज मनी चाहिए तो सही। Short films, I've been writing a few feature concepts, web series concepts, all of those are going on. So I'm trying out as many things as possible. It helps me learn as well. Right. Even the concepts that don't go forward have given me some learnings. Right. तो अपना हो गया, बुक्स वाली चीज हो गई, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, प्रैक्टिस हो गई, मेंटर्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, आई लुक अप टू अ लॉट ऑफ देम। Okay. सबके पास अपना अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस है, तो गलती करके सीखो या उनसे सीख लो। Yeah. तो क्लासेस करना, जस्ट जहाँ पे भी मौका मिले टॉक टू देम, थोड़ा बहुत भी, जितना भी 5 मिनट भी दे पाए वो लोग, सब कुछ से सीखने को मिलता है। एवरीथिंग आई हैव डन। तो मैं वही बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इम्प्रूव हुआ है, इट हैज चेंज्ड माय राइटिंग। 3-4 साल में इट हैज चेंज्ड टुवर्ड्स व्हाट आई हैव वांटेड, कि मेरे को आगे जिस तरफ प्रोफेशनल राइटिंग की तरफ जाना है, तो उस तरफ चेंज हुआ है, एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग इज शेपिंग इट इन सम वे और फॉर्म। Right. तो वो है कि जो आपका वो क्वेश्चन था कि फॉर समबडी वांटिंग टू स्टार्ट, कैसे करना है, या मतलब एम आई टू लेट, बट नहीं, आपकी जो भी लाइफ रही है, व्हाटएवर लाइफ यू लिव्ड सो फार इज योर ओन यूनिक लाइफ, यू आर द प्रोटैगनिस्ट इन योर स्टोरी। तो वो एक्सपीरियंस और किसी के पास नहीं है। अगर आप उसके बारे में लिखो, इफ यू राइट व्हाट यू नो अबाउट, दैट विल बी यूनिक फॉर मी, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। सो इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट राइटिंग। फॉर द प्रोफेशनल वाला साइड इट टेक्स सम प्लानिंग टू डू। टू बी अ स्टोरी टेलर, मुझे लगता है कि वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट is empathy. अरे वेरी नाइस। Because unless you empathize with the particular character that you're writing about, you cannot honestly write about that character, their feelings, what they're going through. तो वो स्टोरी इतना ऑनेस्ट नहीं आएगा। हाँ। सो सो जस्ट लाइक दैट, मुझे लगता है जस्ट जैसे एम्पैथी इज इम्पोर्टेंट, एंड नॉट एवरीबडी हैज enough empathy to put it. It can be an acquired skill. Yeah. So I just wanted to know what are the acquired skills versus what are the
inborn skills that a person should have when they come into this profession? मैं always have been of that school of thought कि everybody can do this. Okay. मतलब मेरा थिएटर में स्टार्टिंग भी ऐसे ही हुआ था कि देयर वर कॉलेज में पीपल हु वर सुपर टैलेंटेड, Okay. मतलब उनके सामने फिर खड़ा होने में भी शर्म आती थी. बट देन आई फाउंड वन पर्सन हु हैड जीरो टैलेंट, Okay. 100% कॉन्फिडेंस, लाइक सब लोग कर सकते हैं. हिज मोटिवेशन वाज कि हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. Hmm. एंड ही गॉट ऑल ऑफ अस रैंडम चिल्ड्रन ऑन बोर्ड, स्टार्टेड वर्किंग विद अस, बहुत हार्ड वर्क कराया, बहुत मेहनत कराई, Hmm. एंड आउटपुट हमको अच्छा लगा सबको. तो अच्छा. वो फर्स्ट टाइम था वेयर आई रियलाइज, एंड देन आई फॉलोड दैट स्कूल ऑफ थॉट कि टैलेंट होता होगा अपनी जगह, Hmm. टैलेंट विल डिफाइन कि आप उस स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्लेस्ड हो, Right. बट एवरीबडी कैन गेट टू दैट प्लेस. Hmm. Yeah. ठीक है ना, कि वो महल में सब लोग पहुंच जाएंगे. अब महल में अंदर कहाँ तक जा रहे हो, मे बी टैलेंट और लक, कॉन्टैक्ट्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल वर्क, Yeah. टाइमिंग, lots of variables, so that is not in your control, but I feel everybody can get into it. Hmm. So अब क्या है, आपको एक तो लैंग्वेज की पकड़ चाहिए. Hmm. ठीक है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो, वो तो अभी तक नहीं आती. बहुत अच्छी हिंदी आती हो, वो भी जरूरी नहीं है, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ हिंदी हैज देयर ओन प्लेस. ठीक है. Yeah. अब मिर्जापुर में वो एकदम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल रहे हैं. Hmm. Yeah. पाताल लोक में भी वो अलग तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं. Hmm. सेक्रेट गेम्स में देर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. Right. वही मैं जब सारा भाई वर्सेस सारा भाई पे जा रहा हूँ तो देर यूजिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. Hmm. तो हर तरह की लैंग्वेज की प्लेस है. यू जस्ट नीड टू फाइंड योर ओन ऑडियंस एंड कंटेंट, Hmm. Right. योर लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिफ्लेक्ट्स इन अ गुड स्टोरी. Yeah. तो लैंग्वेज वाला बैरियर नहीं है आजकल, स्पेशली Okay. बिकॉज रीजनल कंटेंट का कंजम्पशन हैज आल्सो ग्रोन अ लॉट. Hmm. So even if you know a regional language, you can find out people who are making content in that. Yeah. So that is one. दूसरा, empathy वाली चीज भी, it can be an acquired exercise that you do. Okay. And I feel वो in general life में भी बहुत help करती है. Hmm. Of course. Writing is considered a very emotionally draining process as well. Yeah. Because मैं हर character जो लिख रहा हूँ, मैं उससे relate करता हूँ. फिर I take myself through that emotion. Hmm. कि what if I got rejected by this, Yeah. and at the same time ये चीज हो गई, Hmm. and on top of that somebody comes to me and says कि यार ना आगे नहीं आएगा, that will break me. Yeah. ठीक है, but वो the comment was not the bad thing. Hmm. The background is what, so I have to feel all of that, then decide कि अच्छा at this point this guy starts crying. Yeah. ठीक है. Now I'm doing that for every character, and I put that 4 months का effort into that one script. वो सारी चीजें खुद भी इमोशनली ड्रेनिंग होती हैं, प्लस दैट इज नॉट पॉसिबल अंटिल यू एम्पैथाइज विद एवरी एस्पेक्ट. Hmm. ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज अच्छी लगती है, बट विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विलेन इज नॉट अ विलेन फॉर द सेक ऑफ बीइंग बैड. Yeah. Yeah. अ गुड विलेन इज अ ग्रे कैरेक्टर जिसके पास रीजनिंग होती है. थैनोस क्यों पसंद आया था लोगों Hmm. को? वो इसीलिए पसंद आया था Yeah. कि दे हैव अ रीजनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दैट. Hmm. एंड कुछ स्टोरीज है जहां पे यू डोंट नीड दैट. Yeah. मोगैम्बो को मैं रीजनिंग नहीं दूंगा क्योंकि वो फ्लेवर वो वाला है उस Hmm. चीज का, एंड वो भी बहुत अमेजिंग है. Yeah. ठीक है, बट मैं उसको उसका बैक स्टोरी नहीं दूंगा कि बचपन में माँ मारती थी तो मैं ऐसा हो गया. हाँ. ठीक है, सो एवरी स्टोरी हैज देयर ओन प्लेस. Hmm. As soon as you make someone else the protagonist, put yourself in their shoes, Yeah. empathize with them, the world changes यार, मतलब acceptance बढ़ जाती है. Hmm. The third one is about basic story structures. Hmm. ठीक Okay. है, वो पढ़ के आ जाता है. अच्छा. मतलब मैंने भी अब प्रोफेशनल मतलब डिप्लोमा और डिग्री कोर्स और वो वाला नहीं किया है, नॉट एन Right. इंस्टीट्यूशनल कोर्स दैट आई हैव डन, Hmm. बट आई हैव रेड दीज थिंग्स, आई हैव डन स्मॉलर कोर्सेज दैट हैव टॉट अबाउट दैट. मैं अभी भी जितने कोर्सेज पॉसिबल होते हैं अटेंड करता रहता हूँ, बिकॉज एवरी न्यू टीचर हैज देयर ओन वे ऑफ टीचिंग. Yeah. डिफरेंट फिल्म्स के रेफरेंसेस देते हैं, Hmm. ब्रेकडाउन्स, रीडिंग स्क्रीन प्लेस. तो वो ये हो गया स्क्रिप्टिंग वाली चीज. Yeah. स्ट्रक्चर्स, आप मूवीज देख तो रही हो, Hmm. एनालाइज करो. नॉवेल्स भी पढ़ो तो स्टोरी स्ट्रक्चर्स और समझ में आते हैं. देयर आर बुक्स ऑन द सेम टॉपिक्स जो आपको बताते हैं कि कितने तरह के जॉनर्स हो सकते हैं, कितने तरह के प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, ट्विस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्क, है ना, कि चेकॉव्स गन क्या होती है, हाँ. एंड हाउ टू यूज दैट, Hmm. हाउ टू एस्टेब्लिश दैट, हीरोज जर्नी क्या है, 3 पार्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो Okay. 3 है कि 18 है, all of those things. अच्छा. So those technicals are something that you can learn and acquire. So Okay. I feel everybody can get into this. Okay. Okay. मतलब मेरा भी वही है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी कर पा रहा हूँ तो anybody with some passion, some ounce of interest in it can do it. Is script writing as a profession, when somebody starts, Hmm. so there has to be few calculative moves, Hmm. right? But ये भी गलत नहीं है कि कोई randomly jump करे इसमें, हाँ. because
वैसे भी होता है, ऐसे भी होता है, यस राइट? हाँ So there's no right way to do it, right? बिल्कुल Just from my experience, just a random question that came to my mind. तो अभी कुछ दिनों पहले हम लोग नेटफ्लिक्स में एडोलेसेंस देख रहे थे, ठीक है? वेरी नाइस या So so the way my brain has been conditioned from watching all the Hindi serials, Hindi web series, Hindi movies. हाँ I mean, first episode में ही रिवील हो जाता है बहुत क्या होने कुछ. वाला है हाँ, हाँ हाँ ठीक है. बट हाँ लास्ट एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स तक मैं वेट कर रही थी कि कुछ एक ट्विस्ट होगा एंड दिस गाय वोंट बी द किलर. हाँ So maybe because I have been conditioned in a way हम्म, from my experiences हाँ that I tend to keep waiting for that कि कुछ तो twist. होगा हाँ, हाँ कुछ तो ऐसे. बिकॉज यूर यूज्ड टू दैट हैपनिंग Yeah. हाँ So when you're a writer, हम्म ठीक है, so obviously you will also have had your life experiences, your conditioning, यस ठीक है. So how do you go around looking at different things from different perspectives? जैसे adolescence देखा, so I got a new perspective कि इसको twist के तरफ से नहीं देखना था, हाँ हाँ इसको as a life, उस what that person is going through, करेक्ट उस नजरिए से देखना था. हम्म So when you create stories, how do you stop that conditioning from coming to you? सो होता क्या है तो अपना एक कल्चरल वो बैकग्राउंड होता है टू द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू आर मेकिंग वहां पे दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ फिल्म्स बिकॉज their audience is expecting something like that. Their audience is expecting a deep dive into the realistic treatment of an incident. Right. क्या हुआ था, पुलिस ने क्या किया था, Hmm. किलर ने क्या किया था, what was the situation surrounding all of that. Right. तो मेरे को वो चीज देखनी है तो मैं उसके लिए देख रहा हूँ. मे बी द ऑडियंस गोज फॉर अ वेरी सिनेमैटिक वर्जन ऑफ एन हिस्टोरिकल इवेंट तो डनकर्क बन जाती है. उसमें भी ट्विस्ट नहीं है एंड में, यू नो वो हिस्टोरिकल इवेंट है बट फिर लोग अलग अलग पर्पस के लिए जाते हैं. सो वेन एवर आई लेट्स से गेट इनटू अ कॉन्सेप्ट, पहले ये डिफाइन करना होता है जो मार्केटिंग में सीखा भी है कि आपका मार्केट क्या है, ऑडियंस क्या है, इज देयर अ गैप फॉर योर प्रोडक्ट, व्हाई विल इट बी न्यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, क्योंकि आई एम गिविंग देम द बिगेस्ट जंप स्केयर ऑफ देयर लाइव्स, so I'll go for that. Rohit Shetty, I believe he's doing the right thing because he has found his own thing. Right. And वो कहते हैं कि यार जो मैं करता हूँ वो कोई और करके दिखा दे. ठीक है, he has found his audience ना, आपको नहीं देखनी आप मत देखो. He's doing his own thing. So every piece of content has their own place. तो understand your audience, understand the market, and suddenly आपको realize हो जाएगा कि अच्छा ये वाली audience को twist नहीं चाहिए. They want a straightforward thing. ये वाली audience को twist चाहिए because end में इनको वाव करते हुए जाना है. Right. तो आप उनको दोगे वो वाली चीज because वो खुश हो रहे हैं उस चीज पे. दंगल में जो एंडिंग थी आपको पता था कि वो जीतने वाली है, बट दैट एंटायर पीस ऑफ आमिर खान गेटिंग ट्रैप्ड इन अ डोर और फिर वो एंड में आता है और उसी टाइम पे विक्ट्री हो रही होती है एंड दैट वन लुक दैट इज एक्सचेंज, वो इसलिए दिया है बिकॉज इंडियन ऑडियंस को व्हेन वाचिंग लाइक दैट स्टोरी वो ड्रामा चाहिए वहां पे. यू हैव सीन दैट कैरेक्टर ग्रो इन फ्रंट ऑफ योर आईज, वो एम्पैथी आ गई. व्हेन अ राइटर इज एम्पैथेटिक इनफ वो अपने कैरेक्टर में भी एम्पैथी जनरेट करवा लेगा फॉर द ऑडियंस. Okay. तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ. एवरीथिंग इन स्टोरी टेलिंग कनेक्ट्स टुगेदर. इवन व्हाइल लेट्स से स्टोरी टेलिंग इसलिए बोला मैंने बिकॉज इट्स नॉट सेट टू जस्ट स्क्रिप्ट एंड फिल्म मेकिंग. आप पोएट्री लिख रहे हो, आप सॉन्ग्स लिख रहे हो, आप एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हो. दैट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी दैट यू आर टेलिंग इन 60 सेकंड्स, इन 15 सेकंड्स. मैं क्या वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या वो 15 सेकंड्स में मेरे प्रोटैगनिस्ट का बैकग्राउंड समझ पा रही है, एम आई यूजिंग स्टीरियोटाइप्स फॉर इट. ठीक है, उसका जो इमोशन है वही जो 3 सेकंड का रिएक्शन का टाइम मिलता है उसमें, कि ऑडियंस को वो समझ में आ रहा है, कैन दे रिलेट टू इट, इज देयर अ नीड, is there a particular audience segment who can see themselves in this protagonist. So there's a structure and thought behind all of these things जो similar है. बस आप फिल्म में एक बड़े स्केल पे करते हो, यू डूइंग इट ऑन अ मोर सब्जेक्टिव लेवल. इसीलिए कुछ पिक्चरें फेल होती हैं, कुछ पास होती हैं, डज नॉट मीन कि वो अच्छी है या बुरी है. कुछ कॉन्सेप्ट सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, डज नॉट मीन कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं. मेंट कि वो किसी और के पास पिच हो गया, किसी और के पास होना था. तो वो हो जाता है. This brings us to segment 4 जहाँ पे हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे. और मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड आई वांट यू टू आंसर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. ठीक है? ओके, 1 लेट्स स्टार्ट. गिफ्ट हैम्पर मिलेगा ना Yeah, करण वाला. करण वाला. If your life were a movie, what would the genre be? इट वुड बी अ राजकुमार हिरानी फिल्म.
ड्रामा, कॉमेडी, सैडनेस सब एक ही सीन में सब कुछ आ जाता है। It's always there, all the emotions. So it would be a Rajkumar Hirani film, ka Sanju, Munna Bhai, हाँ. that thing. Okay. What is it? One weird ritual that you have in your writing process? है, I call it दम लगाना. Okay. So बिरयानी बनाते हैं तो दम. put everything, हाँ. आग जलाते हो नीचे और दम लगा देते हो. हाँ हाँ. तो मैं आइडिया को दम लगाता हूँ. मैं रात Okay. में रिसर्च करता हूँ. अच्छा. ठीक है, जैसे कुछ भी लिखना है तो मैं शाम को दिन भर रात में आई विल रीड अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स. सोचना नहीं शुरू करूंगा. Okay. बहुत सारी चीजें पढ़ ली. आई रीड ऑल अबाउट उस दैट टॉपिक, कंट्री के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, वट एवर इज देयर, सारी रिसर्च कर लूंगा. ये सारा डाल दिया हांडी में. Okay. और मैं सो गया. अच्छा. दम लग गया वो. अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एज सून एज आई गेट अप आई स्टार्ट राइटिंग अच्छा. विदाउट थिंकिंग. तो वो जो महकते हुए आइडियाज आते हैं ना पहले उसमें खुलते से ही, वो यूजुअली आई हैव सीन वर्क्स फॉर मी. मतलब उसको डेफिनेटली पॉलिश करता हूँ आगे जाके. वो जो पहली बार वो जो खुलती है हंडी और जो आइडियाज बाहर आते हैं, दैट बिकम्स माय वर्कशीट टू प्ले विद. ओके. एंड ये प्रोसेस अपने आप बन गई थी एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट. तो वो दम लगाता हूँ हर बार. If you weren't a writer, what would you be? ये इजी है. मतलब द नेक्स्ट पैशन दैट आई हैव आफ्टर दिस इज गेमिंग. अच्छा. हाँ. Okay. तो अगर मैं राइटर नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं गेम राइटर होता because I like the stories that they build. But there is It's a very immersive story building, that storytelling that happens in games. Games like Red Dead Redemption 2, Okay. Last of Us 1 and 2, God of War के जो latest आए हैं. अच्छा. There's a very emotional, immersive story that is happening over there. I would have wanted to be a part of a game writing or game design journey अगर ये नहीं करता तो. Next would be if you were a character, a movie character or a game character or any character, any fictional character, who would you be? Oof, ये भी मुश्किल है. अभी recently I think I watched a movie, The Storyteller. Okay. Paresh Rawal. अच्छा. He was a Bengali storyteller hired by a Gujarati businessman to narrate stories to him at night अच्छा. to cure his insomnia. Okay. So वो जो उसमें परेश रावल जी का कैरेक्टर है, an idealistic storyteller, I would have wanted to be someone like that in an alternate universe. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. दूसरा आई लाइक अगेन परेश रावल जी का ही है, प्लस ऋषि कपूर जी थे उसमें. शर्मा जी नमकीन करके पिक्चर थी अच्छा. जिसमें half of it was shot by Rishi Kapoor ji originally. Okay. And since he passed away, could not complete it, Paresh Rawal ji stepped in and did the other halves of his remaining halves of his scenes. Okay. Okay. But आपको कहीं पे लगता नहीं है कि there is a disconnect. अच्छा. He has played it so honestly. The full emotion का range is there. And वो जो character है ना, it's such a lovable character कि मतलब वो ये कि I still hope कि when I grow old, I would have that kind of a enthu in life. जो मोटिवेशन उनके पास था, जो लाइवलीनेस थी. So that is the aim. The last question would be, what are the 3 things in your bucket list as a scriptwriter? Easy. Do one feature, one web series, and one song lyrics for a feature film. अच्छा. ये तो करना है. कैसे भी करना है. Good. Good. ठीक है. This brings us to the last segment. जहाँ पे जहाँ पे मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ कि you are a resilient being. All of the friends in the friend circle believe that you're resilient, but some of you don't believe that you are. But we would love to know, and maybe the audience would also love to know, कि on hard days, on those difficult days when you're questioning your career move, your decisions, your own scripts, all of that, उन दिनों में what keeps you going? Ups and downs वाली चीज definitely होती रहती है. Why I don't call it resilience is because मेरा एक selfish reason है to stay in this. Okay. For me, writing or creating something, storytelling is like a magic spell. Okay. आप अगर वैसा देखो कि
somebody came to your house and said a string of connected words, ठीक है ना, chain of words which affected your emotion. Okay. आपके केमिकल बैलेंस को चेंज किया, some random person entering or coming on screen and saying a series sequence of words. आपको हो सकता है रोना आ गया उससे, आपको हो सकता है खुशी आ गई, आप में एड्रेनलिन आ गया, Yeah. ना, आप में सेरोटोनिन रिलीज हो गया बिकॉज ऑफ दोस वर्ड्स. तो इट्स अ स्पेल. Yeah. It affects the culture or the strata of the country as well. कि जब तारे जमी पर आई थी, Yeah. because of that a lot of people got aware of certain things that let's say children are going through. जिससे पहले बोल दिया जाता था कि it's a difficult child. Yeah. It changed mindsets. तो वो जादू है. अभी रिसेंटली मैंने वो देखी थी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव. अमेजिंग फिल्म, अगेन वरुण रोवर. Yeah. आई कीप ऑन गोइंग बैक टू हिम. उसमें वो वाली चीज थी कि यार दैट व्हाई दोस गाइस वांटेड टू मेक इट वाज व्हाट दे सॉ कि बस्टर कीटन की 100 साल पुरानी बनी हुई फिल्म अभी तक लोग देख रहे हैं. Yeah. दैट गाइस डेड, फार लॉन्ग डेड, बट वो लोग अभी तक वो चीज देख रहे हैं. चार्ली चैपलिन की चीजें अभी तक देख रहे हैं लोग. Yeah. दे मेड समथिंग व्हिच गोस बियॉन्ड टाइमलाइंस, व्हिच मे लास्ट फॉरएवर hopefully. Yeah. And they wanted to make something that leaves a lasting impression. Yeah. ठीक है? तो मुझे है कि मतलब ऐसा कुछ भी बना लूं ना जो let's say my next generation, my son Akshar Yeah. would see on screen Yeah. when let's say I'm not there anymore. That is enough for me. बाकी कुछ नहीं भी होगा, अपन फॉरेन ट्रिप्स नहीं कर रहे हैं अभी, कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस कि भाई मुंबई में नहीं रह पा रहे हैं अभी, भोपाल में रहना पड़ रहा है. Yeah. There are lots of different decisions that we've taken. Family has also sacrificed for that. Yeah. पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस. उनके भी कुछ ड्रीम्स होंगे कि भाई सिविल इंजीनियर बनाया, आईआईटी से कुछ करेगा, घर वर बनाएगा, सब गॉन डाउन द ड्रेन. द वाइफ हैज आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट. शी हैज चेंज्ड हर रूटीन्स फॉर मी, शी हैज चेंज्ड हर सिटी फॉर मी. शी सपोर्ट्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डू. मैं थोड़ा सा क्रेजी हूं, मैं सोचने बैठता हूं तो मैं 4-4 घंटे रूम में बैठा रहता हूं. But she understands that to find a partner like that, to find a family like that is also keeping me continue on this path. Again, जो मैंने बोला था कि being able to do something so crazy like this is a privilege, and I acknowledge that privilege. तो इसलिए मुझे होती है कि यार मेरे को मिला है ये अपॉर्चुनिटी एंड मैं भी वेस्ट जाने दूंगा तो फिर वो फेयर नहीं है ना. A lot of people are much more talented than me, उनको मौका ही नहीं मिलता है. तो फिर अब मेरा तो करना बनता है. As soon as you realize ना कि you are not the worst of, आप पिटी के वो नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, you are not the saddest person or the most downtrodden person in the universe. वहां पे मोटिवेशन आ जाता है कि ठीक है यार, when those people are continuing, why should I give up? बाकी फिर वो सारा तो पैकेज है उसके अराउंड कि ओके पीपल विल वॉच इट, अपलॉज, एप्रिसिएशन, वो सारी चीजें तो है ही. कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है थोड़ा एप्रिसिएशन. वो 2 लोगों से भी मिल जाए ना तो काफी है, लेकिन कभी कभी चाहिए होता है टू कीप यू गोइंग. एक टाइम पे मैं भी ओपन माइक्स करती थी यस. पोएट्री. तो so even though that was a hobby and I did not pursue it as a career, but मुझे याद है there was one lady who reached out to me on Instagram. She found me out after listening to the poetry. She found me out and she texted कि तुम्हारा ये poem was very relatable. नाइस. And thank you for the feelings that I got after I heard it. बस So उसके बाद मिला ना, अब तो मैं पक्का ओपन माइक्स करूंगी. कितना अच्छा But लगता है ना ये, जस्ट दैट बहुत, वन पर्सन. yeah, yeah, एक पर्सन का भी इमोशन चेंज हुआ तो आपका स्पेल वर्क कर गया, exactly. है ना. So when you actually say that it's magic, हाँ. it really feels कि हाँ you have done something. Your And words encourage someone or made someone type things on their phone, yeah, click on things, yeah, text you, get in touch with you, think about you. तो yeah, आपने काफी सारा चेंज किया. yeah, तो you found your audience. yes, yes, वो बहुत बड़ी चीज है. And you've also taken a lot of risks in your life. अभी भी ले रहे हो. And what keeps you going? I think the inner child, creative child in me पागलपन is जो है. पागलपन जो है, हाँ. जो क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन में ऐसे क्रॉसवर्ड पजल्स बनाती थी. मैं खुद एक पिक्चर को काट के आई यूज्ड टू मेक जिगसॉ पजल्स. So all of that, Wow. something there was this crazy creativity that I had, जो था अंदर, and now I'm able to live that हाँ. with my profession. तो
So that gives me a boost कि मुझे जो मन है मैं वो कर रही हूँ. You said you took a lot of risks. हाँ. Three big risks. मुझे लगता है कि the way you are, some of those risks must have been calculative risk. In a way. हाँ. In a way, yeah. So what would your advice be to people who want to chase these creative dreams, but something is holding them back? So by that, are we talking to, let's say, youngsters जो अभी कॉलेज में हैं या बिफोर दैट या जस्ट अभी जॉब ज्वाइन किए हैं, who have some time ahead of them, who don't have a lot of responsibilities? उनके लिए it would be a different thing. For people who have family responsibilities, who have commitments, monetary as well as, let's say, time commitments, उनके लिए it would be a different route. Maybe we can touch upon both a little bit. For youngsters who have the time and जो अभी चोट खा के वापस उठ सकते हैं आसानी से, जो रिस्क ले सकते हैं, I would say go for it. Okay. ठीक है, मतलब go for it not in the sense कि सामान वामान उठा के मुंबई चले जाओ. Right. If it that also works for some people. If you feel that you have the financial backing to take that thing, maybe do that. If you have the financial backing to, let's say, start creating content on your own. So a lot of people start with that. जो भी आपको करना है, start doing it. आपको लगता है आपको लिखने में इंटरेस्ट है, स्टार्ट राइटिंग. यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ जॉब टू स्टार्ट राइटिंग ना. यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. तो आप लिखो. आपको फिल्म बनाना अच्छा लगता है तो फोन उठाओ, बना लो. स्टार्ट डूइंग इट इज द फर्स्ट थिंग फॉर यंगस्टर्स. ठीक है, बिकॉज क्या है, लेट्स से दे कैन आइदर गो इनटू this industry, they apply for a job right after college in something like this, or a parallel industry, or maybe they are doing something else entirely. कि वो अपने कॉलेज से निकल के आईटी कर रहे हैं, डेवलपर है, अपना काम कर रहे हैं. सो दे कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट साथ में डू दिस. उससे एक पोर्टफोलियो भी बन जाता है. आगे जाके आप किसी को मिलते भी हो तो यू हैव समथिंग टू शो फॉर इट कि यार मैं 2 साल से आई हैव बीन डूइंग दिस, नाउ विल यू गिव मी वर्क. यू कांट बी लाइक कि मैं 2 साल से सोच रहा हूँ करने के बारे में, क्या आप मुझे काम दोगे? राइट. बिकॉज व्हेन पीपल कम टू मी, होता है ना, आई आस्क फॉर देम कि यार अच्छा अभी तक क्या लिखा, एंड इफ दे हैव रीसेंट वर्क दैट दे हैव डन, अच्छा हो बुरा हो डज नॉट मैटर, बिकॉज वो तो मेरा जॉब है टू टीच. राइट. पीपल शुड नो दैट यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. यू आर राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग. एक्टिंग आती है तो मे बी रील्स, ऑल्दो रील एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म एक्टिंग. आपको उसमें कैरेक्टर में बहुत ज्यादा घुसना पड़ता है उस चीज के लिए. एटलीस्ट यू आर डूइंग इट. आप ऑडिशंस पे जाते हैं, सो वो स्ट्रगल वाला फेज एक होता है. youngsters can still do that. Okay. They have time to experiment. फिर there will come a point जहाँ पे आपको decide हो जाएगा, youngsters के लिए ये पूरा, there will come a point where you will be now doubly sure कि ये करना है. Now you have that again choice to either take a leap of faith or go for formal education. क्योंकि you're still doing that, right? You're just a graduate. Post graduate कर सकते हो, diploma कर सकते हो. You have the choice for a formal education at that point of time. एंड यू स्टिल यंग. अभी वो वाले होम लोन, कार लोन, वो सब नहीं आया है ना लाइफ में. बच्चे की एजुकेशन नहीं आई है. तो ये वो वाला पार्ट है. वहां पे देन यू टेक दैट जंप एंड देन सी वेयर इट टेक्स यू. As soon as you get into those kind of circles of, let's say, formal education, assisting people, applying for auditions, just writing and putting your content online, you start finding more like-minded people and उनके साथ एक path मिल जाता है. You grow with the people around you. ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे यू कांट ग्रो अलोन. मैं ग्रो कर रहा हूँ अगर, तो मैं अपनी टीम के साथ ही ग्रो करूंगा. ये जो पागलपन है ना, ये होना जरूरी है. जो आपने बोला था ना कि ये ग्लैमर लगता है, वी स्टार्टेड विद कि दिस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. तो उनके लिए वो वाला है कि एक बार ये मैराथन पे दौड़ना शुरू करो. खत्म हो गई तो हो गई. तो वो, लेकिन वो पता चल जाएगा ना. यू कैंट वेट फॉर अ जॉब टू डू दैट. फॉर पीपल विद कमिटमेंट्स, अब वो जैसे मेरे जैसे वाले रोल आ गए, फैमिली है, देयर आर फाइनेंशियल कमिटमेंट, देयर आर डिपेंडेंट्स ऑन यू. यू डोंट हैव दैट मच बैकिंग कि भाई मैं तो खुद की पिक्चर बना लूंगा 10 करोड़ रुपए लगा के. वो सब अगर नहीं है, सो देन यू हैव टू फाइंड पैरेलल्स. ठीक है, मेरा जो स्किल सेट है दैट आई वांट टू डेवलप, where else can I apply that? For me the logical connection was advertising, where I learned everything. I still apply that.
उसको सप्लीमेंट लेकिन मुझे करना पड़ा विद मार्केटिंग नॉलेज। सो आई स्पेंट 2 इयर्स इन एन एमबीए टू बी एबल टू डू दैट। वो नहीं करता तो मेरे को अगले 6 साल का जो एडवर्टाइजिंग में सक्सेस मिला है, लर्निंग मिली है, वो नहीं मिलता। ओके। सो वो एक माइंडसेट बनाया कि ये करना है, एक स्किल देखी कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, देन वहां पे फिगर आउट किया। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो इट इज हार्डर, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हार्डर कि आप अपना फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो, आप अपनी फैमिली कमिटमेंट्स भी कर रहे हो, राइट। एंड देन वीकेंड्स पे अपना पैशन निकाल के कर रहे हो। पीपल हैव डन दैट, या किया हुआ है, काफी लोगों ने किया हुआ है। ऑल्सो बिकॉज आपकी जो for the let's say people who are 30 plus 40 plus, your life experience has already made you more mature than the younger writers. They've given you more material to work with. राइट। अब आपके पास वो वाला पैशन है, आप स्टिल अपनी लाइफ जी रहे हो, राइट अबाउट दोस थिंग्स, मेक फिल्म्स अबाउट दोस थिंग्स, शूट वीडियोस अबाउट दोस थिंग्स। एक्टिंग पसंद है तो थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करो इन योर सिटी, डू ओपन माइक्स। या आजकल it has become much easier to follow the passion because there are lots of people who will do it with you. राइट। बहुत सारे पागल हैं आजकल देश में, तो वो वाली चीज है कि मिल जाता है, करते रहो, उनके साथ करते रहो, ठीक है, बिफोर टेकिंग दैट बिग लीप की जॉब छोड़ दिया, या है ना। इट हैज टू बी वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वंस यू ट्राइड आउट थिंग्स, यू मेड कॉन्टैक्ट्स, एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा दिस माइट टर्न इनटू अ रेगुलर इनकम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, दैट इज वेयर यू टेक अ चांस टू लीव योर जॉब, राइट। डू एन एक्सपेरिमेंट कि ओके मेरे पास 2 साल का रनवे है, लेट मी ट्राई दिस फुल टाइम फॉर 2 years बट मेक द मोस्ट ऑफ इट। इन दैट 2 years यू कांट टेक अ ब्रेक और अ हॉलिडे, वो नहीं हो सकता। फिर राइट। नहीं होता है तो फिर आई थिंक you might have to go back to whatever you were originally doing and then continue weekends वाला चीज। so यहाँ पे it gets much more complex because ये तो मेरी ओपिनियन हुई ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी लाइफ बहुत अलग है, तो फॉर यू द स्पेसिफिक्स माइट बी डिफरेंट, बट फिर वही है कि वो एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, प्लानिंग होती है, वो वाला पॉइंट आ जाता है वेयर सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता, है ना। यू हैव टू मिक्स इट विद सम रैशनल, सम लॉजिस्टिक्स, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इट माइट स्लो यू डाउन थोड़ा सा, बट दैट्स ओके, मैराथन है, स्लो डाउन होके एंड तक पहुंचना इज द गोल। ऐसी चीज को अप्रोच करने के लिए आई ऑलवेज यूज दिस फ्लो चार्ट मेथड, ठीक है। तो मेरा हमेशा इफ देन एल्स कमांड में चलता है ओके, हाँ, कि इफ ये अगर इफ इफ देयर इज अ स्किल, इफ देयर इज समथिंग दैट आई लाइक, डू आई लाइक इट इनफ कि आई कैन डू इट फॉर माय all my life? If yes, do I have the skill set? If I don't, can I can I build it? acquire that? Yes. Can I build that? Do I have the patience to do that? Do I have the funds to do that? All of that. तो वो मेरा एक चलता रहता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हाँ, वगैरह। एनालाइज योर सिचुएशन, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, तो वो चेंज होती रहेगी सिचुएशन भी। कीप ऑन एनालाइजिंग इट एंड देन टेक इट टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन। कि अभी मैंने भी जो बोला था कि मेरे पास एंड गेम का एक रफ आइडिया है, रास्ते का आइडिया नहीं है, राइट। वो चल रहा है आगे पीछे। I mean, to take a decision, as you said, there is no right and wrong way. If a decision works for you, it works for you. Only thing I think जो consistent है in both of these routes or anyone else, कि keep doing it. Yeah. अगर तुम ये पैशन वाली चीज, क्रिएटिविटी वाली चीज करना ही चाह रहे हो इन एनी फॉर्म, तो करते रहो। Right. Can't wait for a commission or a project or some money or a job to do it कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ कि पैसे मिलने पर ही करूंगा, क्योंकि जोकर भाई साहब ने बोला है कि इफ यू आर गुड एट इट डोंट डू इट फॉर फ्री। तो मैं तो एकदम हाँ स्टार्ट हो गया हूँ। वो थिंकिंग आपको स्लो डाउन नहीं कर रही है ना, बिकॉज आप डेली जिम नहीं जा रहे हो। फिर आप बोल रहे हो जब तू पैसे देगा ना तो उस दिन जिम जाऊंगा और बॉडी बना के लाऊंगा, तो वो नहीं हो रहा है। दे विल गिव यू मनी फॉर द वर्क दैट यू डन। आपके पास नया कॉन्सेप्ट आएगा, इफ यू हैव बीन डूइंग, इफ यू हैव बीन होनिंग योर ब्रेन द मसल अकॉर्डिंगली, हो सकता है आप वो आइडिया एक हफ्ते में लिख दो, बट दे आर नॉट पेइंग यू फॉर 1 week ऑफ मैनुअल लेबर, दे आर पेइंग यू फॉर दो 7 years ऑफ कंसिस्टेंटली राइटिंग something better, writing even better, scratching all of that, doing even better, coming up with fresh ideas. फिर वो जो characters you've made during this will be helpful जब वहां पे स्टोरी में एक प्लॉट पॉइंट आएगा जहां पे लगेगा कि यार यहाँ पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो डम्बलडोर की तरह गाइड बन सके, है ना। तो अब मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर है क्या? हाँ है, लो डालती है। तो बी एबल टू डू दैट, आपने मेहनत करी है ना इतनी सारी। मैंने कहीं पढ़ा था कि
तुम जब पोडियम पे खड़े रहते हो, दैट मतलब तुम्हारा जो विन है, दैट इज 5% हाँ of your success. 95% is behind the scenes, यस यस wherein you put हाँ your efforts daily. हाँ सुबह 4 बजे उठो, you have a consistent routine हाँ that you keep following. So yeah. वही कि मैचेस आर वन ऑन द प्रैक्टिस फील्ड, वो वाली चीज है Yeah, ना। yes. Yes. Last, not the least, what is it one a belief or a quote or a poetry or a stanza from a poem that that keeps you anchored? हाँ again I'll go back to my college days and my inspiration from Mr. Nikhil Sachan, हमारे senior थे. He has written amazing books, UP65, Zindagi I Spice, Papa Man, Yeah, amazing books that he's written. वो सब अभी feature films and web series में convert भी हो रही हैं. yeah. So he was the first one that we used to look up to कि यार कुछ तो लिखता है ये. And one of his earliest poems that I read, जो अभी तक stick करती है, I've repeated it multiple times to a lot of people, which defines my core belief. Okay. तो उन्होंने एक लिखा था कि यूं हद में रह के जीना हो तो इश्क मेरी जाना कीजिए, यूं आधा पौना करना हो तो इश्क मेरी जाना कीजिए, उड़िए तो ऐसा उड़िए कि आसमां से गले लगो, बस उस छज्जे तक जो उड़ना हो तो इश्क मेरी जाना कीजिए. Wow, best way to. So what he wants to say is कि कर रहे हो तो पूरा करो, Yeah, आधा अधूरा से क्या मतलब है. So वो है कि हाँ कर लेंगे. yeah. It brings us back to that thing कि हाँ कर लेंगे. हाँ, कर लेंगे. You Um, come a full circle. हाँ, Yeah, it has always come back to me in times of doubt कि ठीक है ना, जब लिया ही है डिसीजन yeah. तो करते हैं. Hmm. That keeps me grounded वहाँ पे. Yeah, And all thanks to Nikhil Sachan for writing those words and inspiring us. yeah. हर पीस ऑफ कंटेंट से इंस्पायर होता हूँ. मैं अभी भी पिक्चर देखता हूँ तो रोता हूँ, गेम्स Hmm. खेलता हूँ तो उसमें भी रोता हूँ, जब इंडिया जीतती है तो उस पर खुश भी होता हूँ, जब विलन को वो फाइनली हीरो घुमा के मारता है तो मजा भी आता है कि हाँ मार. ठाकुर जब फाइनली गब्बर सिंह में यूं जूता मारता है तो वो हाँ, खुशी भी होती है कि हाँ ही हाँ. डिजर्व्स इट. Yeah, वो सारी चीजें व्हेन यू लेट द मैजिक कम इनटू यू, yeah. that is when you're at the position to let that magic flow out of you, Hmm. and then maybe somebody will get inspired. Wonderful. Such a wonderful note to end the podcast. Thank you so much, अरे so much for this. इतने टाइम से प्लान हो रहा था कि we'll shoot हाँ this, but circumstances we were not able to. But what a podcast! I loved this too. अरे the pleasure is all Every mine. second of it. ज्ञान देने का तो बहुत शौक है अब. Okay, good. Thank you. Thank you so चलो much. man.